شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، زمادہ سواد پختونو، روریانو، خوریانو او مشرانو، السلام علیکم. راغے 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 رالے رالے تاسو سنگائے خیر نواز شریف مو یادے گی خیبر پختونخوا اور سوات کے غیور پختونوں، سوات کی بیٹی خیبر پختونخوا کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم. شیروں کی بیٹی دلیروں کی بہن کی طرف سے السلام علیکم. میرے پشتون بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے آج بتا دیا کہ غیور پختون بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں. بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنا جانتے ہیں. یہ جعلی حکمرانوں کی طرح نہیں جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتون کا احترام کرتے ہیں. جب میرا کراچی میں دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے اس وقت خاتون کا احترام یاد نہیں آیا؟ میں بھی سوات کی بیٹی ہوں، میں بھی خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں. کیا میرے غیور پختونوں آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اور گالی نہیں. آج خیبر پختونخوا کے جعلی حکمرانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عوامی جلسہ کیسا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جو سوات میں سرکاری جلسہ ہوا تھا نا، آج ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں. ایک سمندر یہ ہے، ایک سمندر وہ چھتوں کے اوپر ہے، ایک سمندر وہ گلی اور محلوں کے اندر ہے، اور ایک سمندر اور جلسہ یہ عوام کا باہر کھڑا ہے. میرے سوات کے بھائیوں بہنوں، غیور پختونوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کمروں کے دروازے توڑنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیا ایسی کم ظرف حرکت کرنے والا پختون ہو سکتا ہے؟ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قاضی کو کے میرے غیور بھائیوں بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ
اس قسم کے گھٹیا زبان بولنے والے لوگ آپ کی نمائندگی کے اہل ہیں؟ اور سب سے پہلے یہ میرا جو بھائی کھڑا ہے امیر مقام، تیرا مقام، میرا مقام، امیر مقام، امیر مقام، مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے، اس کا نام ہے امیر مقام۔ انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں، جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے، میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، اور اسی کی سزا ان کو ملی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کم ظرفوں نے ان کے 20 سالہ بیٹے اشفاق امیر مقام کو گرفتار کیا، اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا اس کا۔ شرم آنی چاہیے آپ سب کو، جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں، بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے، اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو۔ اور پھر ہم آج دلی تعزیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے، ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی وفات پر۔ تو میں خیبر پختونخوا کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پہنچایا، اس کے انجام تک پہنچایا، تو وقار احمد سیٹھ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے گھر والوں سے، ان کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں۔ آج ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے، ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور میں خود ایک ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اور یاد ہے نا، آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے، کس طرح دہشت گردوں نے مسجد، مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی بازار، کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہ بازار محفوظ تھے، نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھی۔ پولیس افسروں نے، یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی، آپ سب کو بھی سلام، جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا، دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا۔ آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا، اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی۔ اور آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے۔ اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے۔ تمہارے بغض میں کردار
का सर उठा रही है तो इसका वजीर दाखिला धमकियां देता है, कहता है देखो हमारी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिन खानदानों ने, खैबर पख्तूनख्वा के खानदानों ने दलेरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, उसमें बिलोर खानदान भी शामिल है। उसके अंदर जो आज वजीर आला धमकियां देता है कि तुम्हारा भी वो हाल करूंगा जो ANP वालों का हुआ है। मियां इफ्तिखार साहब ने भी अपना इकलौता बेटा खोया है दहशतगर्दी के अंदर। सोचो जरा वजीर दाखिला के इस बयान से उन शहीदों के घर वालों पर क्या गुजरी होगी। क्या तुम सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें इंसानियत भी भूल गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बशीर बलोर साहब को 22 दिसंबर को शहीद किया गया, उनके अहले खाना पर क्या गुजरी हो गई। बैरिस्टर हारून बलोर को शहीद किया गया, सोचो उनके बच्चों पर, उनके खानदान पर क्या गुजरी होगी। और अल्फाज से दहशतगर्दी करने वाला वजीर दाखिला, शर्म आनी चाहिए। दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान की कुर्बानियों का ये सिला दे रहे हो आवाम को? शर्म आनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मालाकंड डिवीजन और सवात के मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये जरा बताओ मुझे, 7 साल से आपके ऊपर एक नाअहल हुकूमत मुसल्लत है, बताओ क्या खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? वो पिछले लोग भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आई है? क्या यहां एक भी नया अस्पताल बना है? यहाँ के लोग जब बीमार हो जाते हैं, एक फनकार थे बेचारे, वो यहाँ बीमार हो गए, उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि बीबी या मुझे पंजाब बुलाओ या इस्लामाबाद में बुला के मेरा इलाज कराओ, और मैंने कराया अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज। मुझे पता है कि आपको किस किस्म के हालात का सामना है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर्स की छतें टपकती हैं, मुझे अंदाजा है आपकी तकालीफ का। और यहाँ जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो उनके सर फाड़े जाते हैं। जब यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता हादसा होता है तो यहाँ पर एक लेबोरेटरी भी नहीं बना सके, पंजाब की फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेजते हैं। क्या यहाँ निजाम में, तालीम में तब्दीली आई? कोई एक नया स्कूल बना, कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी बनी, आपको फ्री लैपटॉप्स मिले, आपको तालीमी वज़ाइफ मिले, आपको नौकरियां मिली? नहीं मिली ना। और कहता था कि एहतसाब मुझसे शुरू करो, और जब एहतसाब तुमसे शुरू हुआ तो तुम एहतसाब कमीशन को ताला लगा के भाग गए। यहाँ पर एहतसाब का सामना करने के लिए नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए, मुस्लिम लीग नून के लीडरान और कारकुन जैसा जिगर चाहिए। स्कैंडल को जानते हो ना? और कहां है वो बिलियन ट्री सुनामी? क्या आपको बिलियन ट्री, क्या 10 दरख्त भी कहीं लगे हुए नजर आते हैं? वो दरख्त यहाँ के ऑडिटर जनरल को नजर आए, उसने रिपोर्ट में लिखा कि उन दरख्तों और पौधों में ये करोड़ों और अरबों रुपए खा गए। ये वो मैंने आपसे ये भी पूछना था कि BRT बस चल रही है, कोई नई बस में आग तो नहीं लग गई, जल तो नहीं गई?
कहता था कि मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, और फिर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इसने नवाज शरीफ की नकल करते हुए, शहबाज शरीफ की नकल करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पता नहीं कितने साल से वो बस बन रही है, आज तक भी नहीं बनी। उसने ऐसी बस चलाई जो उसकी तरह बहुत ही बेबस है। वो बस इस हुकूमत और इस जाली सिलेक्टेड की तरह चलने से इनकारी है, और रोज बसों में आग लग जाती है, कभी गलत पुल बन जाते हैं, कभी दरवाजे उल्टी तरफ खुलते हैं, हर रोज खुदाई होती है। कभी खबर आती है कि चोर सरिया उठा के ले गए, कभी खबर आती है कि चोर सामान उठा के ले गए। दावा था कि 10 रुपए की टिकट होगी, आज बीआरटी का किराया 100 रुपए से बढ़ाकर 250 250 रुपए कर दिया गया। कहता था तीस अरब लग चुके हैं, लेकिन वो बस कंप्लीट नहीं हुई। और रोड क्या नारा लग रहा है, क्या नारा लग रहा है, मैं बताती हूँ। ये मेरे भाई ये नारा लगा रहे हैं, ना झुकने वाला नवाज शरीफ, ना बिकने वाला नवाज शरीफ। इख्तियार गुली के दिलों की धड़कन कौन है? नवाज शरीफ। और जरा मुझे ये भी बताओ, ये जो मेरे सामने मेरे भाई और बुजुर्ग खड़े, बताओ खैबर पख्तूनख्वा में आज रोटी कितने की है? कितने की? खैबर पख्तूनख्वा में रोटी आज 30 रुपए की है। ना सिर्फ रोटी 30 रुपए की है, बल्कि आज सुबह में अखबार में पढ़ रही थी कि आईएमएफ ने कहा है कि जब तक बिजली और गैस के निर्ख नहीं बढ़ाओगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। और वो कौन था जो कहता था 200 अरब आईएमएफ के मुंह पर मारेंगे? और आज आईएमएफ आपको आज रोज मुंह पे थप्पड़ लगा रही है। अरे दिल दिए दुआ ,50 लाख घरों में से एक घर भी किसी को मिला?
1 करोड़ नौकरियां जो होनी थी उसमें से 1 नौकरी भी किसी को मिली। देखो, आटा कंट्रोल से बाहर, बिजली की कीमतें कंट्रोल से बाहर, गैस की कीमतें कंट्रोल से बाहर, चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर, दवाई की कीमतें कंट्रोल से बाहर, कपास और फसलें कंट्रोल से बाहर, डॉलर कंट्रोल से बाहर, गैर मुल्की कर्ज कंट्रोल से बाहर, और 18 अरब का कर्जा रोजाना लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि एक ईंट भी लगी खैबर पख्तूनख्वा में? महंगाई कंट्रोल से बाहर। आप मुझे ये बताओ, मैं चाहता हूं तो बस नहीं चलता, अवाम के मसाइल पे बस नहीं चलता, बस एक ही चीज पे चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना कैसा बनाना है, ऑपोजिशन को कंट्रोल कैसे करना है। महंगाई कंट्रोल नहीं होती, लेकिन दिन से रात और रात से सुबह तक सिर्फ एक ही मंसूबा बनता है कि मुस्लिम लीग नून और शेरों को कंट्रोल में कैसे करना है। मेरी एक तकरीर होती है, मेरी एक तकरीर होती है, और 24 घंटे इनके मशीर और इनके वजीर टीवी पर आकर दिन रात हलकान होते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ का बयानिया वो है जिसकी 2 तकरीरों ने तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया है। दिलों की धड़कन है तू, फख्र का बस अगर चलता है तो आपकी बहन और बेटी के बाथरूम और कमरों में कैमरे लगाने पे चलता है। अगर कैमरे लगाने का इतना ही शौक है तो जरा नैब की अदालतों में कैमरे लगाओ और अवाम को दिखाओ कि तुम्हारा असल मकरू चेहरा क्या है, किस तरह तुम अपने मुखालिफों पे झूठे इल्जाम लगाते हो। मैं चाहता हूं दुनिया को बताना चाहता हूं, दुनिया को बताना चाहता हूं, काजी को सुनाना चाहता हूं, काजी को सुनाना। बुजुर्गों, एक ही इलाज है, एक ही इलाज है पाकिस्तान की सारी बीमारियों का। पाकिस्तान को आज लाहिक बड़े बड़े मसाइल का एक ही इलाज है कि इस इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत को घर भेजो और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर नए इलेक्शंस कराओ। अवाम के हकीकी नुमाइंदों को उनका इख्तियार वापस करो और अवाम को उनका मैंडेट दो। और देखो, मैं इदारों को कहती हूं कि इमरान खान के पीछे से हट जाओ, क्योंकि मेरे सवात के भाइयों, हम इदारों से नहीं टकराना चाहते। इदारों को भी चाहिए कि अवाम के साथ ना टकराएं। अवाम और इस जाली हुक्मरान इमरान खान के दरमियान में से हट जाओ। जब तुम इसके पीछे से हट जाओगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि इमरान खान की जाली हुकूमत 24 घंटे की मार नहीं है इंशाल्लाह।
में जब मेरा दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया और आईजी को अगवा किया गया, इसको पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या हो रहा है। इसको किसी ने बताने के लायक भी नहीं समझा कि हम कराची पे हमला करने लगे। वजीर आजम आराम से अपने बनी गाला के घर में सो रहा था। अगर मेरी बात सुनो, आप लोगों को ये बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी क्योंकि आप इज्जत और गैरत वाले लोग हो। लेकिन अगर ये वाकया मेरे साथ हुआ होता और मेरे पास इस मुल्क का इख्तियार होता तो जितनी जिल्लत उस दिन मुझे उठानी पड़ी, मैं इस्तीफा इनके मुंह पर मारती। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसी जिल्लत और ऐसी रुसवाई और ऐसी बेइज्जती से चुप करके बनी गाला में मुंह छुपा के बैठ जाना बेहतर है। और आखिर में मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने अवाम को एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तून के अवाम इस दफा शेर को वोट दें। उसकी वजह ये नहीं है, बखुदा उसकी वजह ये नहीं है कि मैं चाहती हूं कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूं कि सवात और पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के सारे शहर लाहौर की तरह तरक्की करें। यहाँ भी लोगों को जबरदस्त सड़कें मिलें, यहाँ भी लोगों को मोटरवेज मिले। नवाज शरीफ ने हजारा मोटरवे बना दी कि नहीं बना दी? इंशाल्लाह 18 को मैं मानसेरा में भी जलसा करूंगी इंशाल्लाह। और मैंने देखा है कितनी खूबसूरत हजारा मोटरवे बनी है। मेरा दिल करता है कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर जैसी तरक्की हो। खैबर पख्तूनख्वा के हर शहर में लाहौर और पंजाब की तरह जबरदस्त अस्पताल बने और बड़े बड़े कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज बने और जबरदस्त किस्म का निज़ाम तालीम यहाँ राइज हो। मेरा दिल करता है कि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को लैपटॉप्स मिले, उनको बेहतरीन तालीम मिले, यहाँ के लोगों को सेहत की सहूलतें मिले। मेरा दिल करता है कि आपको महंगाई कम हो और आपको सुकून की नींद सोना नसीब हो। तो मेरे सवात के गयूर अवाम, वोट को इज्जत दो का नारा समझते हो ना? नवाज शरीफ का बयानिया समझते हो ना? पता है ना नवाज शरीफ क्या कह रहा है? वोट को इज्जत दो की तहरीक का सबसे बड़ी फतह यह है कि इस तहरीक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज गुजरावाला से लेकर कराची तक, कराची से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक और गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज सवात तक पूरा पाकिस्तान ये जान गया है कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान में तबाही आती है, पाकिस्तान में गुर्बत आती है, पाकिस्तान में महंगाई आती है, पाकिस्तान में नाकानूनियत आती है। अभी आपको पता है मेरे भाइयों, मैं अभी कल रात को पहुंची हूँ खैबर उधर गिलगित बल्तिस्तान में 8 दिन मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन करके। और आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि किस तरह अवामी समंदर था हर जलसे में। माशाअल्लाह, मुझे समझ नहीं आई कि इतनी अवाम गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में किस तरह आ गई। मुझे वहां के लोगों ने बताया कि कभी गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में इतने बड़े बड़े जलसे किसी के नहीं हुए। तो ये लोग जो गिलगित बल्तिस्तान की दूर के गांव में भी जहां ना फोन है ना इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, वहां भी लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ
का बयानिया क्या है। वहां पर एक 5 घंटे दूर गिलगित गांव था। वहां के एक कारकुन ने मुझे कहा कि हमारी बहन, हम मरते दम तक आपका साथ देंगे, लेकिन आपने अपने बयानिए से पीछे नहीं हटना। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, दलेरों और कारकुनों का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने क़यादत को मजबूर किया कि वह असूल पे डटे रहे और खड़े रहे। जिंदाबाद। कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ 2 या 3 सीटें मिलेंगी, लेकिन इस कैंपेन के बाद ये सर जोड़ के बैठे। मेरे जलसों में 5-6 की तादाद इनकी खुफिया एजेंसी के लोगों की भी होती थी। उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि ये तो बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर कल सर जोड़ के बैठे और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून को अवामी ताकत का मुजाहरा किया है गिलगित बल्तिस्तान ने, तो अब इनको 2-3 सीटें नहीं, अब कम से कम 8-7 सीटें देनी पड़ेंगी। तो ये याद रखना, पाकिस्तान के अवाम ये याद रखे कि अगर कि इंशाअल्लाह 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में या शेर पर मोहर लगेगी या नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहर लगेगी। धांधली करोगे तो पछताओगे, नहीं करोगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है इंशाअल्लाह। तो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ सियासी लोग नहीं उठा सकते। ओ भाई, नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। और क्योंकि मेरे सवाल के शेरों, ये बयानिया जो है आइन का बयानिया है, आपकी आइन की सबज किताब का बयानिया है, आपके कानून का बयानिया है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का बयानिया है। और ये बयानिया आगे लेकर चलना, इसके लिए जिद्दोजहद करना, इसमें जौक दर जौक शामिल होना हमारा अपने वतन के लिए कर्ज नहीं बल्कि फर्ज भी है। और इंशाअल्लाह आपकी बहन ये कर्ज भी पूरा करेगी, इंशाअल्लाह ये फर्ज भी पूरा करेगी आपके साथ। और ये जो मस्खरों की हुकूमत है, ये अवाम दुश्मन हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए के बोझ के नीचे दब चुकी है। अब रेत की दीवार को बस आखिरी धक्का लगाना बाकी है। आओ मेरे साथ, मेरे सवात के मालाकंड डिवीजन के भाइयों बुजुर्गों, हाथ उठा के अपनी बहन बेटी मरियम नवाज के साथ वादा करो और हल्फ उठाओ कि जब तक इस कौमी फरीजे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाओगे, आराम से नहीं बैठोगे। वादा। और इंशाअल्लाह 22 तारीख को पेशावर के जलसे में शिरकत करोगे ना, फिर अपनी बहन और बेटी को मिलने आओगे ना इंशाअल्लाह। और अगर आखिरी बात, अगर मेरे साथ जाकर इस्लामाबाद में अपनी फतह का झंडा गाड़ना पड़ा तो अपनी बहन के साथ चलोगे ना, मरियम नवाज का साथ दोगे ना, नवाज शरीफ का साथ दोगे ना, मुस्लिम लीग नून का साथ दोगे ना, वोट की इज्जत करवाओगे ना, अपनी इज्जत करवाओगे ना। तो एक दफा फिर मेरे शेरों और दलेरों और गैरतमंदों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। मेरे साथ मिलके अपने लिए नारा लगाओ, सवात के मेरे भाई जिंदाबाद, मालाकंड डिवीजन जिंदाबाद,
خیبر پختونخوا زندہ باد. میرے غیور پختون بھائی اور بزرگ زندہ باد. نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد. شاہد خاقان عباسی زندہ باد. احسن اقبال زندہ باد. امیر مقام زندہ باد. مرتضی جاوید عباسی زندہ باد. اور پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.